Okay, so now we'll continue unit number 4. Okay, so unit 1, linear differential equation. Unit number 2 is the transform. Okay, unit 3, statistics, and unit 4 is probability. Now next unit is vector calculus, and last unit is application of partial differential equation, which is trivial. Okay, that unit is trivial. We have to work more for unit number 5. Okay, so in this unit we already covered the distribution part. The last part, which is the pure probability, that is remaining. Okay, in case of probability distribution, we have covered the binomial distribution. Next is Poisson distribution, and the third part is normal distribution. Okay, उसके भी सारे पॉसिबल क्वेश्चंस मैंने कवर किए. उसके बाद कुछ नहीं आने वाला. लैंग्वेज चेंज होगी, वैल्यू चेंज होगी. ओके, बट इफ यू अगर आपके पास प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग है तो वो इजीली आप अटेम्प्ट कर पाओगे. नाउ लेट अस स्टार्ट द लास्ट टॉपिक, दैट इज द प्रोबेबिलिटी. ओके, सो अगेन जो भी थ्योरी पार्ट है उसमें मैं कुछ ज़्यादा इन डिटेल में नहीं जाने वाला, बिकॉज दैट पार्ट इज ऑलरेडी कवर इन 11th एंड 12th. ओके, इसलिए जो नेसेसरी फॉर्मूलेज है उस पर वो लेके ही मैं डायरेक्टली एमसी को स्टार्ट करने वाला हूँ. बट अगेन फॉर प्योर प्रोबेबिलिटी, फॉर एवरी क्वेश्चन द लॉजिक इज डिफरेंट. ओके, ये आपको सबको ही पता है कि प्रोबेबिलिटी के जो क्वेश्चंस रहते हैं उसमें हर एक क्वेश्चन में लॉजिक अलग अलग होता है, एंड उस अकॉर्डिंग आपको वो सारे क्वेश्चन कंप्लीट करने या सॉल्व करने. ओके, मैक्सिमम क्वेश्चंस मैं यहाँ पे ले रहा हूँ. देखिए, बट स्टिल अगर इसके बारे में अगर कहीं पे कुछ क्वेश्चन मिल जाते हैं, दैट आल्सो वी कैन कवर. तो ऐसे कुछ टॉपिक है जहाँ पे प्रैक्टिस की ज़्यादा ज़रूरत है. ठीक है, तो उसके मैक्सिमम एमसीक्यूज आपको अगर कहीं से भी मिलते हैं या मुझे भी कहीं से भी मिलते हैं, अदर कॉलेज से, अदर क्लासेस से, सो आई विल टेक दोज एमसीक्यूज एंड शेयर विद यू. ठीक है, तो उसमें से भी आप प्रैक्टिस करो. Okay, so now let's start with the basic definition of probability. Now this is not a part of distribution. Okay, it's a pure probability जो आपने 11th 12th में लर्न की थी. Okay, so how you calculate a probability of any given event. So if A is any given event, so how you calculate a probability of that event A. Okay, what is the definition? So the number of elements in that event A, n of A means the number of elements in that event A upon the number of elements in the sample space. Okay, or simply there is one more way to define this: number of favorable outcomes, okay, divided by total number of outcomes. Number of favorable outcomes divided by total number of outcomes. Okay, this is also the one more definition of probability. ठीक है, ओके, एग्जाम्पल से ये वैसे भी क्लियर हो जाएगा कि आपको न्यूमरेटर में क्या रखना है. न्यूमरेटर में क्या आता है? इन न्यूमरेटर जिसकी प्रोबेबिलिटी आपको कैलकुलेट करने वो काउंट न्यूमरेटर में आता है, एंड इन डिनोमिनेटर यू हैव टू कंसीडर ऑल पॉसिबल आउटकम्स, सैंपल स्पेस. फॉर एग्जांपल, इफ आई टेक एग्जांपल ऑफ टॉसिंग अ कॉइन, सिंपल एग्जांपल से रिलेट करता हूं. टॉसिंग अ कॉइन, सो व्हाट इज इन द डिनोमिनेटर? ओके, व्हेन यू consider experiment of tossing a coin, there is only two possibility. One time मैं ले रहा हूँ, I have to fix that. There is only two possibility. One is head, second is tail. So the total number of possible outcomes are 2 only. Okay, और फिर आपका आता है इवेंट जिसकी आपको प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है, that is P of A. So if I define event A as probability of getting head, if I define event A as probability of getting head, okay, so there is only one head, that probability become 1. तो इस event, okay, तो A में कितने elements आएंगे? Only one element, H, because we have to count only head. So and from this you can define probability. So probability of A is equal to the number of elements in A upon the total number of elements in the sample space. So this is my A and this is my sample space. ठीक है, सिंपल डेफिनेशन से ये सारी चीज़ें याद रखो, कुछ ज़्यादा आपको डिफिकल्ट एग्जांपल्स भी नहीं है. अगर कोई वेटिंग में है क्या? ओके, सो या नाउ नेक्स्ट इज व्हाट दैट प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 and 1. आई थिंक यू ऑल आर अवेयर अबाउट दिस. ठीक है, ओके, इज दिस क्लियर? इज दिस पार्ट क्लियर और नॉट? ओके, तो प्रोबेबिलिटी में ये चीज आप याद रखो. ओके, सिंपल वे क्या होता है याद रखने का? जिसकी प्रोबेबिलिटी आपको, जिस इवेंट इज आल्सो वन ऑफ द एक्सपेरिमेंट. ओके, या आप इसको रैंडम वेरिएबल भी बोल सकते हो. ठीक है, तो जिस इवेंट की आपको प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है, ओके, उसमें कितने एलिमेंट्स आते हैं, दैट यू हैव टू कंसिडर ऑन न्यूमरेटर, एंड द टोटल एलिमेंट्स इन द सैंपल स्पेस दैट यू हैव टू कंसिडर इन द डिनोमिनेटर. ओके, अभी हर क्वेश्चन भी हमें आगे सॉल्व करने हैं, तो हर एक क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है, तो वहां से भी आपको ये क्लियरली समझ में आ जाएगा. ओके, these are some results. Okay,
ये जो सेक्शन है ना, इसमें मैं मतलब अगर आप बुक में देखोगे तो वहाँ पे इन डिटेल में थ्योरी पार्ट उन्होंने दिया, बट उतना कुछ आपको अभी प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं है. ओके, इट्स बेटर टू सॉल्व एग्जाम्पल फर्स्ट, फिर उसमें जो जो चीज़ें आती है उस हिसाब से आप अपने फॉर्मूले प्रिपेयर कर सकते हो. तो वही मैंने यहाँ पे किया है. ठीक है, क्योंकि इतना इन डिटेल जाने की ज़रूरत भी नहीं है. और प्रोबेबिलिटी अगर आप देखते हो इन डिटेल में अगर आप जाओगे, सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ दिस स्पेशल यूनिट. सो ओके, तो इसलिए विल स्टिक to the content. Okay, content in the our unit. Okay, so these are the theorems related with the probability. It is very similar to your set theory. So aware about set theory part आपको कहीं पे तो रहेगा. ठीक है, सेट में जो चीजें आती है उससे भी आप डायरेक्टली इसको रिलेट कर सकते हो. सो व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी? सो दिस इज माय ए सेट and this is my suppose B set, and I have to calculate probability of A union B. So this whole set. So what is that value? It is nothing but probability of A. So probability of A. Next is plus probability of B plus probability of B. But अब इसमें प्रॉब्लम क्या हो रही है? Probability of A में भी इंटरसेक्शन पार्ट रिपीट हो रहा है एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी में भी इंटरसेक्शन पार्ट रिपीट हो रहा है. तो ये दो बार आ रहा है, ये जो मिडल का पार्ट है दो बार आ रहा है. सो टू सब्ट्रैक्ट दैट पार्ट, सो दैट कैन बी रिटन एज माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. ठीक है, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी कैन बी रिटन एज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए plus probability of B minus probability of A intersection B. This is the simple, this you can directly relate with the set theory. ठीक है, so if I consider a set A, एक और बार मैं एक्सप्लेन करता हूँ क्योंकि ये फॉर्मूला मुझे आगे चाहिए. And if I consider set B, correct? So probability of A union B. So probability of A union B क्या होता है? What is that formula? I will show you. So प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, तो ये को मैं हाईलाइट करता हूँ. ये फॉर्मूला कैसे आ रहा है मैं आपको फिर से एक्सप्लेन करता हूँ. एंड दैट वैल्यू मस्ट बी ए यूनियन बी. यही आंसर आपका आएगा. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, नेक्स्ट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ बी. तो आपको दिखाई दे रहा है जो इंटरसेक्शन पार्ट है उसमें दोनों कलर आ रहे हैं, मतलब वो रिपीटेशन में हो रहा है, इसलिए मुझे उसको सब्ट्रैक्ट करना होगा. सो दैट्स व्हाई हियर आई कंसीडर ए इंटरसेक्शन बी एंड दैट होल थिंग गिव्स यू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी. ओके, इज दिस क्लियर? ये फॉर्मूला क्लियरली समझ में आ रहा है? दिस इज फॉर ऑल इवेंट्स ए एंड बी. ठीक है, व्हाट हैपन इफ आई कंसिडर दिस टू इवेंट टू बी इंडिपेंडेंट इवेंट? यहाँ पे मैंने इंटरसेक्शन लिया है, यहाँ पे मैंने इंटरसेक्शन लिया है, मतलब यहाँ पे मैंने ऑलरेडी क्या कंसिडर किया? सपोज दिस आर डिपेंडेंट. व्हाट हैपन इफ दिस टू इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट? मीन्स व्हाट? देयर इज नो इंटरसेक्शन. इफ देयर इज नो इंटरसेक्शन, कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी? Yes, it is just probability of A plus probability of B because that intersection part is 0. So this value directly become 0. ठीक है, इसलिए मैंने बोला था कि आपको मैं ज़्यादा डेफिनेशन के हिसाब से नहीं एक्सप्लेन करने वाला हूँ, डायरेक्टली सेट थियरी या सिंपल जो रिजल्ट है वहाँ से ये सारे फॉर्मूले में आपको रिलेट करके दे रहा हूँ. आपने अगर देखा होगा तो आपने इसको इन डिटेल में लर्न किया होगा. म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट, एग्जॉस्टिव इवेंट, डिपेंडेंट इवेंट, इंडिपेंडेंट इवेंट. कोई ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे भी ये सारी चीज़ें याद रख सकते हो. सो दीज आर टू इवेंट. इफ इट इज डिपेंडेंट, योर फॉर्मूला इज लाइक दिस. इफ इट इज इंडिपेंडेंट, मीन्स देयर इंटरसेक्शन पार्ट इज 0, देन A union B just the probability of A plus probability of B. Okay, now this is an open question. Can anyone tell me one example of dependent event? कोई भी आप खुद क्रिएट करो और मुझे बोलो कि एक डिपेंडेंट इवेंट का मुझे एक एग्जांपल चाहिए. इंडिपेंडेंट इवेंट के तो सारे आपको पता ही है कि जितने भी अभी तक हमने लर्न किए डिस्ट्रीब्यूशन में, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में, ऑल दोज इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट. Okay, still I want example of that also. Can anyone try this? Wrong आने दो. Okay, आप create करो कोई भी एक example and try to prove that this event is dependent. Yes, anyone? Any random experiment you can take. बोलो. ये आपको समझ में आ जाता है डायरेक्टली जब भी आप वो क्वेश्चन रीड करते हो, बट स्टिल किसी को पता है व्हाट इज द डिफरेंस या व्हाट इज द डिपेंडेंट इवेंट एंड व्हाट इज द इंडिपेंडेंट इवेंट. ओके, ठीक है. एनीवन टेल मी यस और नो. इफ यू इंडिपेंडेंट का तो बोलो, चलो डिपेंडेंट का छोड़ो. इंडिपेंडेंट इवेंट इसके क्या
क्या होता है, अगर आप मतलब वो एक्सपेरिमेंट मतलब सिंगल ट्रायल इज ऑलवेज अ इंडिपेंडेंट ट्रायल। अगर आप वो एक्सपेरिमेंट दो बार रिपीट करते हो, ओके, इफ यू रिपीट दैट एक्सपेरिमेंट से 2 टाइम्स, तो क्या होना चाहिए, इंडिपेंडेंट मीन्स व्हाट, जो फर्स्ट ट्रायल है जो सेकंड ट्रायल है उसमें कोई रिलेशन नहीं आना चाहिए। दैट इज नथिंग बट इंडिपेंडेंट इवेंट। ओके, फॉर एग्जाम्पल आप टॉसिंग अ कॉइन का एक्सपेरिमेंट लेते हो, एंड इफ आई टॉस अ कॉइन 2 टाइम्स, इफ आई टॉस अ कॉइन 2 टाइम्स, तो जब आप फर्स्ट टाइम टॉस कर रहे हो, ओके, जब आप फर्स्ट टाइम टॉस कर रहे हो उस केस में भी सैंपल स्पेस में आइदर हेड और टेल आता है। जब आप सेकंड टाइम टॉस कर रहे हो उस केस में भी सैंपल स्पेस में आइदर हेड एंड टेल आता है। तो कुछ रिलेशन है क्या इसमें? नहीं है। दिस टू आर इंडिपेंडेंट ट्रायल। First trial is not dependent on second trial, second trial is not dependent on first trial. Therefore this event is called as independent event. So tossing a coin is the experiment, is the example of independent event. In a similar way, can you tell me, can you give me example of dependent event, जिसमें जो आपका सेकंड ट्रायल है, सेकंड ट्रायल मस्ट बी डिपेंड ऑन फर्स्ट ट्रायल। दिस इज व्हाट आई वांट, योर सेकंड ट्रायल मस्ट बी डिपेंड ऑन फर्स्ट ट्रायल। ऐसा एक एग्जांपल आप खुद क्रिएट करो। हाँ हाँ, बोलो बोलो बोलो। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, मैं आपको और अच्छे तरीके से करके देता हूँ। लेट अस कंसिडर अ बॉक्स विच कंटेन 5 रेड बॉल्स, है ना, एंड 3 ब्लू बॉल्स। ओके, ठीक है। हाँ, तो आपने, हाँ तो, हाँ हाँ, फर्स्ट ट्रायल आपकी क्या है, फर्स्ट, हाँ, तो फर्स्ट ट्रायल आपकी क्या है, आई वांट टू फाइंड अ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल, सो दैट इज 5/8, है ना, करेक्ट ना, क्योंकि टोटल 8 एलिमेंट है, मुझे चाहिए थे रेड बॉल, तो रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या है, 5/8। हाँ, सेकंड ट्रायल क्या है, हाँ, बट उस केस में आपको क्या करना होगा, जो फर्स्ट बॉल आपने यहां से आपने क्या किया था, एक बॉल ड्रॉ किया था ना, उसको आपको रिप्लेस नहीं करना है। तो जो भी बॉल आपने फर्स्ट ट्रायल में निकाला था, ओके, डोंट रिप्लेस दैट, डू नॉट रिप्लेस द फर्स्ट रेड बॉल। तो जब आप सेकंड टाइम वो बॉल ड्रॉ करने की कोशिश करते हो, उस टाइम पे अभी चेंज होगा, क्योंकि ये सेकंड ट्रायल अभी इस पे डिपेंड रहेगा, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, बॉल फिर से रिप्लेस नहीं कर, अगर आपने चलो बॉल निकाला फर्स्ट ट्रायल में और फिर से बॉक्स के अंदर डाल दिया, तो सेकंड ट्रायल में भी क्या आने वाला है, 5/8। समझ रहे हो आप? अगर मैंने फर्स्ट ट्रायल में मैंने रेड बॉल निकाला, ठीक है, तो माई प्रोबेबिलिटी इज 5/8, मैं फिर से वो बॉल उस बॉक्स के अंदर डाल रहा हूं, सो अगेन इन सेकंड ट्रायल प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल इज 5/8। बट अगर मैं रिप्लेस नहीं करता हूं, मतलब यहां से एक बॉल मैंने निकाला, अभी यहाँ पे 4 ही बॉल रह गए, एक बॉल मैंने निकाला यहाँ पे, नाउ वो मैं फिर से यहाँ पे रिप्लेस नहीं कर रहा हूं। नाउ इन सेकंड ट्रायल व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल, अभी क्या आने वाली है प्रोबेबिलिटी, अगर मैं रिप्लेस नहीं करता हूं, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल इन सेकंड ट्रायल, एनीवन? अभी अभी आप क्या, अभी अपने पास कितने रेड बॉल है, देर आर ओनली 4 रेड बॉल, टोटल कितने बॉल्स है बॉक्स के अंदर, 7 है। सो दिस प्रोबेबिलिटी इज टोटली डिपेंड ऑन योर फर्स्ट ट्रायल, देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज डिपेंडेंट इवेंट। इज दिस क्लियर? अभी एग्जांपल कुछ भी होगा, आपको बस वो रिलेशन समझ में आना चाहिए, जहां पे भी जो सेकंड ट्रायल है वो फर्स्ट ट्रायल पे डिपेंड होता है, then that is called as dependent event. Okay, so very good, this is the correct example, ये आप याद रखो। आप कोई भी ले सकते हो ना, आप ड्राइंग अ कार्ड, ठीक है, फ्रॉम अ वेल शेप वर्ल्ड पैक, ओके, और 52 कार्ड्स, 1 मिनट, हाँ, ये आपको पता है, ओके, कार्ड्स का एग्जांपल सबको ही पता है। अगर आपको किंग, ओके, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग किंग की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है, सो दैट इज 4/52। ओके, एक और बार अगर आपको किंग को ड्रॉ करना है विदाउट रिप्लेसमेंट, मतलब जो फर्स्ट टाइम पे आपने किंग को निकाला था उसको बाहर ही रखो, एंड अगेन कैलकुलेट प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग किंग, तो उस टाइम पे क्या होगा, नाउ देर आर ओनली 3 किंग, नाउ देर आर ओनली 51 कार्ड्स, ठीक है। सो दिस इज डिपेंडेंट इवेंट। तो ये जनरली क्या होता है डिपेंडेंट इवेंट में, जो फर्स्ट ट्रायल में जो भी चीज आप निकालते हो, या जो भी वट एवर यू ड्रॉ फ्रॉम द फर्स्ट ट्रायल,
इफ अगर आप उसको नहीं रिप्लेस करते हो, इन दैट केस इट बिकम डिपेंडेंट इवेंट, अदरवाइज इट बिकम इंडिपेंडेंट इवेंट. ठीक है, आई थिंक इट इज इनफ. सो ये फॉर्मूला आपको अभी यूज करना है एग्जाम्पल में, तो याद रखो. नेक्स्ट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी. ठीक है, अभी मैं कुछ ज़्यादा डायग्राम से एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, बट यू हैव टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला. इट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी माइनस, अभी इन सब में इंटरसेक्शन पार्ट एक एक बार रिपीट होगा, तो सारा इंटरसेक्शन पार्ट पहले निकालो, है ना. जिससे ये लॉजिक था वही है. ओके, बट अगर आप ये सारा निकालते हो तो वहाँ पे इंटरसेक्शन पार्ट जीरो रहेगा. ठीक है, आप ये डायग्राम से भी चेक कर सकते हो. ओके, सो यूजिंग दिस इंटरसेक्शन पार्ट फिर से क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, बट यू वांट दैट पार्ट बिकॉज इट्स अ यूनियन, तो आपको फिर से वो इंटरसेक्शन पार्ट ऐड करना होगा. सो इट्स लाइक दिस. आप चाहो तो ये डायग्राम से भी इजीली इसको याद रख सकते हो, है ना. इट्स अ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, है ना. तो क्या आंसर है, पी ऑफ ए. ये पूरा आ जाएगा, है ना. लेट मी टेक अनदर कलर. जस्ट याद के मतलब याद रखने की जरूरत नहीं होगी. ठीक है, दिस इज पी ऑफ ए, दिस इज पी ऑफ बी, दिस इज बी, दिस इज ए. लेट मी टेक अ सी नाउ एंड या, ठीक है, दिस इज सी. अब देखो जो इंटरसेक्शन पार्ट है वो कहाँ पे है, यहाँ पे. ओके, लेट मी शो यू. ठीक है, ये इंटरसेक्शन पार्ट है तीनों का, तीनों का. ठीक है, तो इस इंटरसेक्शन में तीनों कलर आ रहे हैं. ठीक है, इस इंटरसेक्शन में तीनों कलर आ रहे हैं. ओके, तो ए इंटरसेक्शन बी से ये दोनों कलर चले जाएंगे, बी इंटरसेक्शन से ये दोनों कलर चले जाएंगे, ये चले जाएंगे. फिर उस केस में क्या होगा, यहाँ पे जीरो रहेगा कि दैट इंटरसेक्शन, मतलब एक होल दिखाई देगा, कलर ही नहीं रहेगा अगर आप ये करते हो. तो इसलिए फिर से आपको ये इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी ऐड करना होगा. ठीक है, तो उस लॉजिक से भी आप इसको याद रख सकते हो. नो नीड टू रिमेंबर ऑल दिस फॉर्मूलाज. ओके, ये भी फॉर्मूला एक प्रॉब्लम में मुझे यूज करना है, और ये एक फॉर्मूला, रिमेंबर दिस. ओके, नाउ सो दिस इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, और सिंपली इट इज नथिंग बट डिपेंडेंट इवेंट पार्ट. ये आपने ऑलरेडी किया भी है. ठीक है, सो इफ इवेंट बी, मतलब जो सेकंड ट्रायल का इवेंट है, इफ दैट इवेंट इज डिपेंड ऑन फर्स्ट ट्रायल दैट इज ए, उस केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी. ठीक है, ठीक है, इसको रीड कैसे करना है मैं आपको पहले वो बोलता हूँ. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी का मीनिंग क्या है कि आपको यहाँ पे आप कौन से इवेंट की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर रहे हो, ए इवेंट की प्रोबेबिलिटी आप कैलकुलेट कर रहे हो. सिंपली यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, आप ए इवेंट की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर रहे हो. बाय बी का मीनिंग क्या होता है, ये जो इवेंट बी है ना, इट इज ऑलरेडी ऑकर. इवेंट बी इज ऑलरेडी ऑकर, ये ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है. जैसे फर्स्ट ट्रायल में अगर आपने रेड बॉल को निकाला था, सो दैट इज इवेंट इज ऑलरेडी ऑकर्ड. अभी मुझे सेकंड ट्रायल में जाना है, तो ये बस नोटेशन रिवर्स हो गया. ठीक है, बट स्टिल यू कैन रिमेंबर लाइक दिस. सो पी ऑफ ए बाय बी का मीनिंग क्या होता है, ये कुछ भी मतलब ये चलो स्टेटमेंट छोड़ दो, जस्ट फोकस ऑन दिस. पी ऑफ ए बाय बी का मीनिंग क्या होता है, आपको ए इवेंट की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है वेयर द इवेंट बी इज ऑलरेडी ऑकर्ड, जहां पे इवेंट बी आपका कंप्लीट हो चुका है. ठीक है, तो उस केस में उसका फॉर्मूला क्या है, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ऑफ बी. सो इट्स ऑल्सो सिंपल फॉर्मूला. ओके, फॉर एग्जाम्पल अभी वो सेम एग्जाम्पल अगर मैं ले लेता हूं ना, या इट इज देयर, इट इज देयर. ठीक है, सो आई विल टेक डायरेक्टली फ्रॉम वन एग्जाम्पल. चलो, वही उसी टाइप का एक एग्जाम्पल. अभी इस ये फॉर्मूला पहले मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ. सो अ बॉक्स कंटेन, so let me take a box. ठीक है, a 6 red ball, so there are 6 red ball, 4 white ball, 5 blue balls. ठीक है, या क्या 3 balls are drawn successively, मतलब 1 by 1. Find probability that they are drawn in order. तो पहले आपको फर्स्ट ट्रायल में रेड बॉल को ड्रॉ करना है, सेकंड ट्रायल में व्हाइट बॉल को ड्रॉ करना है, थर्ड ट्रायल में ब्लू बॉल को ड्रॉ करना है. ठीक है, ओके, बोलो. सो व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ रेड बॉल? यस,
ये फॉर्मूला क्या आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ. व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ रेड बॉल? एनीवन? ये एक बॉक्स है जिसमें 6/15. गुड. हाँ, अभी इस केस में सेकंड इवेंट आपको कैसे लिखना है, आपको कैलकुलेट क्या करना है, ये नोटेशन क्या है वो समझ में आना चाहिए. फॉर्मूला तो चलो ये रेडीमेड रिजल्ट है आपके पास, विदाउट दिस भी आप ये डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हो. ठीक है, अभी आप देखो, अभी मुझे क्या करना है, मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग व्हाइट बॉल कैलकुलेट करने है. बट यहाँ पे एक स्टेटमेंट था, व्हाइट बॉल इफ बॉल इज नॉट रिप्लेस, मतलब जो भी बॉल आप निकालते हो उसको फिर से रिप्लेस नहीं करना है. ओके, तो आपको क्या करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग व्हाइट बॉल वेयर दिस इवेंट इज डिपेंड ऑन आर, बिकॉज रेड बॉल आप रिप्लेस नहीं कर रहे हो, वेयर द इवेंट आर इज ऑलरेडी कंप्लीटेड और ऑलरेडी ऑकर्ड. नाउ इन दैट केस व्हाट इज प्रोबेबिलिटी? बोलो, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी? वेरी गुड, 4/14. यही फॉर्मूला है. ये आप कैलकुलेट कैसे कर सकते हो, ए इंटरसेक्शन बी अपॉन बी. ठीक है, जो हो चुका है उसको डिवाइड करके वही मिलेगा, मतलब जो रिमेनिंग है. ओके, नेक्स्ट इज नाउ लास्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी. बट अगेन इट इज डिपेंड ऑन व्हाट? हाँ, आता फर्स्ट ट्रायल, इन फर्स्ट ट्रायल आपने कौन सा बॉल ड्रॉ किया था? इसमें क्या किया आपने, आपको क्या करना है, वी हैव टू ड्रॉ रेड बॉल, वन व्हाइट बॉल एंड ब्लू बॉल, इसी सीक्वेंस में. एक्सपेरिमेंट क्या, ये एक बॉक्स है जिसमें 6 रेड बॉल, 4 व्हाइट बॉल, 5 ब्लू बॉल से. आपको क्या करना है, वी हैव टू ड्रॉ 3 बॉल्स सक्सेसिवली इन अ सीक्वेंस इन विच first trial draw red ball, in second trial draw white ball, and in third trial draw blue ball. ऐसा आपका एक्सपेरिमेंट है. ओके, तो फर्स्ट क्या था, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ रेड बॉल? रेड बॉल ड्रॉ करने की प्रोबेबिलिटी क्या है, व्हाट इज दैट प्रोबेबिलिटी? देयर आर 6 रेड बॉल, टोटल देयर आर 15 बॉल, तो 6/15. बट जब आप सेकंड ट्रायल पे आते हो जिसमें आपको व्हाइट बॉल को ड्रॉ करना है, बट ऑलरेडी उसमें रेड बॉल आपने ड्रॉ करके रखा है, रिप्लेस नहीं करना है, नॉट रिप्लेस, मतलब आपने फिर से अंदर नहीं डाला है बॉक्स के अंदर, तो ऑलरेडी आपका एक रेड बॉल लेस हो चुका है. तो नाउ देर आर ओनली 5 रेड बॉल. व्हेन यू कम टू दी सेकंड ट्रायल देर आर ओनली 5 रेड बॉल. नाउ फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग व्हाइट बॉल. सो कितने व्हाइट है, 4 व्हाइट है, कितने टोटल बॉल्स है? ओके, सो टोटल देर आर 14 बॉल्स, 5 + 4 + 5, 10 + 4. ओके, नाउ यू टेल मी, अभी सेकंड ट्रायल में ऑलरेडी आपने एक व्हाइट बॉल बाहर निकाला है, सो देर आर ओनली 3 व्हाइट बॉल. नाउ टेल मी व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग ब्लू बॉल? 5/13. ठीक है, यानी इस केस में ये नीचे क्या लिखना है, 13. वेरी गुड. नीचे क्या लिखना है, जैसे इस टाइम पे आर पे डिपेंड था, ये जो थर्ड ट्रायल है ये किस पे डिपेंड है? ओनली व्हाइट बॉल, व्हाइट एंड रेड, देयरफॉर व्हाइट, करेक्ट बोला, ये किस पे डिपेंड है? व्हाइट एंड रेड, मतलब इंटरसेक्शन आएगा, एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन, सो इट इज डिपेंड ऑन व्हाइट एंड रेड. ठीक है, सिंपल ऐसे क्वेश्चन है. तो और फिर आपको चाहिए, अब ये तीनों को आपको एक टाइम पे सक्सेसिवली निकालना है, तो मल्टीप्लाई ऑफ दिस and multiply by this. So 6/15 multiply by 4/14 multiply by 5/13. ये था आपका फाइनल आंसर. दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग 3 बॉल सक्सेसिवली इन ऑर्डर ऑफ रेड, व्हाइट, ब्लू इफ बॉल इज नॉट रिप्लेस. सो योर फाइनल आंसर इज दिस. रेड को निकाला, फिर व्हाइट को निकाला एंड देन ब्लू बॉल को निकाला. दिस इज योर फाइनल आंसर. ठीक है, तो ये बस मैंने वो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी या डिपेंडेंट इवेंट के लिए एक्सप्लेन किया था. ओके, एंड नाउ हाँ, ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है. अभी ये जनरली आपको ये आगे भी आपको क्वेश्चंस में दिखाई देगा. ओके, एनसीआर, कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज द यूज ऑफ एनसीआर? एनसीआर का जो भी आंसर आता है इसको आप रीड कैसे करोगे? अगर एनसीआर की वैल्यू मेरे पास 40 आ रही है, मीन्स व्हाट दैट 40 रिप्रेजेंट? कैन एनीवन टेल मी दिस?
क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनसीआर? एनसीआर का फॉर्मूला पता है, एन फैक्टोरियल अपन आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल. चलो फॉर एग्जांपल 6c2, I calculate this, it is 6 factorial upon 2 factorial 6 minus 2 factorial. ये जो भी आंसर आता है, what that number tells you? Anyone? What that number tells you? Yes. अब अपने लैंग्वेज में ड्राफ्ट करके बोलो, मुझे वो चाहिए. What that number tells you? क्या समझ में आता है, आपने क्या निकाला है वहां पे एक्चुअली? हाँ, वेरी गुड. ठीक है. हाँ, नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस. ओके. और इट इज नॉट अरेंजमेंट, पहले तो याद रखिए. हाँ, इट इज नॉट द अरेंजमेंट. आपको क्या करना है सिंपली, ओके, आप इसको कैसे देखो, कोई भी एक बॉक्स है, ओके, जिसमें आप चाहो तो 6 बॉल्स है. ओके, मुझे इनमें से रैंडमली आई हैव टू सिलेक्ट 2 बॉल्स. 2 बॉल्स मुझे सिलेक्ट करने या मुझे ड्रॉ करने रैंडमली. फ्रॉम दिस 6 बॉल्स आई हैव टू ड्रॉ 2 बॉल्स रैंडमली. सो हाउ मेनी वेज आर देयर, कितने बार आप ये कर सकते हो? ठीक है. सो देयर आर 62 वेज टू ड्रॉ 2 balls from 6 balls. Is it clear? Is it clear to everyone? Okay. So what NCR represent? NCR gives you in how many ways you can select these R atoms from this N atoms. Okay. In how many ways you can select these R atoms from these N atoms? That is the definition of NCR. ओके. कोई भी एक्सपेरिमेंट आता है, आप बस इसको एनसीआर को कैसे याद रखो, एक बॉक्स है जिसमें n आइटम्स है. ठीक है. और मुझे यहां से आई हैव टू सिलेक्ट r आइटम्स रैंडमली. रैंडमली मतलब इट इज नॉट डिपेंड ऑन अरेंजमेंट. ओके. अरेंजमेंट इज डिफरेंट थिंग और कॉम्बिनेशन इज डिफरेंट थिंग. ठीक है. तो हाउ मेनी वेज आर देयर? ठीक है, दैट यू हैव टू कैलकुलेट. ठीक है. इज दिस क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, भाई ऐसा नहीं समझ में आता है तो suppose there are 3 balls. okay. और मुझे यहां से I have to select 2 balls randomly. so without NCR का यूज मत करो. can you tell me how many ways I can select this? I can select 2 balls. आप चाहो तो इन तीनों बॉल्स को कुछ नाम दे सकते हो, like say ball 1, ball 2 and ball 3. now tell me in how many ways you can select 2 balls. मुझे वो बॉल ही बोलो कि 2 बॉल्स मुझे यहां से सिलेक्ट करने. तो पहला ऑप्शन क्या हो सकता है? B1 B2. करेक्ट है. B1 B2 आ सकता है मेरे पास. अगर मैं 2 बॉल निकालता हूं तो एक B1 हो सकता है, एक B2 हो सकता है, एक B2 हो सकता है, एक B3 हो सकता है. व्हाट इज द थर्ड पॉसिबिलिटी? एक B1 हो सकता है, एक B3 हो सकता है. व्हेन आई ड्रॉ 2 बॉल्स, इज देयर एनी अदर वे? इज देयर एनी अदर पॉसिबिलिटी? ये कॉमन है. इज देयर एनी अदर पॉसिबिलिटी? क्वेश्चन समझ में आ रहा है? एक बॉक्स है, उसमें 3 बॉल्स है, मुझे वहां से आई हैव टू सिलेक्ट 2 बॉल्स रैंडमली. ठीक है. इफ आई डिनोट दिस बॉल्स बाय B1 B2 B3 और मुझे 2 बॉल्स रैंडमली सिलेक्ट करने, तो फर्स्ट इसमें B1 B2 आ सकता है, सेकंड ट्रायल में B2 B3 आ सकता है, थर्ड ट्रायल में B1 B3 आ सकता है. इज देयर एनी अदर वे? और कोई है क्या? और कोई है क्या यहाँ पे? इतनी ही पॉसिबिलिटी है. सो दी व्हाट दिस टेल्स यू? हाँ, so what this tells you, the number of atoms, number of 2 items from these 3 items are, okay, in how many ways you can select the number of 2 items from these 3 items, that count is 3. अब ये सॉल्व करके भी देखो, ये आंसर 3 आने वाला है. ठीक है. 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल. सो इट इज 1 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, जस्ट 3. ठीक है. ऐसे भी आप याद रख सकते हो सिंपल लॉजिक से. ठीक है. तो नाउ रिमेंबर, एनसीआर टेल्स यू नंबर ऑफ वेज. एनसीआर गिव्स यू, मैं लिख लेता हूं यहाँ पे, सो यू कैन चेक दैट फॉर्मूला इन रिकॉर्डिंग ऑल्सो. एनसीआर टेल्स यू नंबर ऑफ वेज टू सिलेक्ट R items from N items.
ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो आपको आगे प्रोबेबिलिटी में यूज करना है। सैंपल स्पेस में कितने मतलब व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सैंपल स्पेस, व्हाट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, व्हाट आर द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सैंपल स्पेस, उसके लिए आपको चाहिए। ठीक है, आई थिंक इट इज ऑलरेडी ओवर। ओके, इंडिपेंडेंट इवेंट है तो इंटरसेक्शन मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए एंड बी इज एक्चुअली प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। इससे यहाँ पे इंडिपेंडेंट एक्सपेरिमेंट के जो वैल्यूज है, ओके, इट्स बेटर टू एक्सपेरिमेंट डायरेक्टली फ्रॉम द एग्जांपल। इफ योर इवेंट इज इंडिपेंडेंट यू कैन मल्टीप्लाई दैट प्रोबेबिलिटी, एंड इफ योर इवेंट इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब देयर इज नो कॉमन बिटवीन दिस टू इवेंट, ठीक है, इन दैट केस यू हैव टू कंसिडर ए यूनियन बी एज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है, अभी ये थोड़ा कंफ्यूजन आपको करेगा इंडिपेंडेंट एंड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में। ठीक है, कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस? What is the definition of mutually exclusive event? What is the definition of mutually exclusive event? इसमें क्या होता है, सैंपल स्पेस जो होता है ना, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मींस व्हाट, ए एंड बी। मैं आपको एक सिंपल डेफिनेशन देता हूं, ए एंड बी को मुझे क्या बोलना है, दिस टू आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। ओके, व्हेन, बिकॉज इफ द सैंपल स्पेस इक्वल टू ए यूनियन बी, मतलब ए इवेंट एंड बी इवेंट दोनों को अगर मैं कंबाइन करता हूं, एंड इफ आई गेट दैट होल सैंपल स्पेस, if I get that whole sample space, that is the definition of mutually exclusive event। ये कुछ ज्यादा नहीं है आपको, तो डोंट वरी अबाउट दिस। ठीक है, इतना याद रखो, mutually exclusive means what, those two events will give you the whole sample space, those two events give you the whole sample space। Simply if I consider example of tossing a two coin, so that is HH TH HT TT। okay, अगर ए इवेंट, ओके, अगर मैं कुछ डिफाइन करता हूं एंड ए इवेंट में अगर ये दो एलिमेंट आते हैं, एक और मैं इवेंट डिफाइन करता हूं इसका कॉम्प्लीमेंट, सिंपली बी इवेंट विच इज एच टी एंड टी टी, सो दिस टू आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, क्योंकि इन दोनों का यूनियन क्या आता है, द होल सैंपल स्पेस वेयर द इंटरसेक्शन इज फाइव, वेयर द इंटरसेक्शन इज फाइव, देयर इज नो कॉमन एलिमेंट्स बिटवीन दिस। ठीक है, सो जस्ट ट्राई टू रिमेंबर दिस डेफिनेशन, कुछ ज़्यादा उस पर आपको नहीं जाना। ओके, जैसे क्वेश्चन आता है उस टाइम पे एक और बार, हर एक जितना भी मैंने कंटेंट ऐड किया है, हर एक कंटेंट पे आपको क्वेश्चंस है आगे, डोंट वरी, ये सारी चीजें फिर से रिवाइज होगी, बट इन द एट दैट टाइम यू नीड टू, मतलब उस टाइम पे आपको ये कंसेप्ट पता होना चाहिए कि क्या उसका मीनिंग है। एंड नाउ दिस आर द बेसिक थिंग्स दैट वी नीड टू सॉल्व प्रॉब्लम्स ऑन प्रोबेबिलिटी। ओके, मुझे पता है कि सबको कार्ड्स के बारे में पता होगा, बट स्टिल इफ यू डोंट नो यू कैन रेफर दिस स्लाइड। ठीक है, देयर आर 52 कार्ड्स, टोटल spades are 13, club cards are 13, diamond cards are 13, heart cards are 13। okay, there are 4 king, ठीक है, 4 queen, 4 jack, 4 as, like this। ठीक है, तो ये बेसिक, ओके, spades means what, heart means what, यहाँ पे मैंने शो किया है। those who don't know about the cards can refer this slide। ठीक है, क्योंकि इस पे भी कुछ क्वेश्चंस आपको आने वाले हैं। okay, so I will not go in detail about this, if you want you can refer directly this slide। Now let me take few examples। Okay, a throw is made with 2 dice, correct? So okay, the probability of getting score 10 points। पहले ये बोलो, एक्सपेरिमेंट क्या है, 2 डाइस को आपको थ्रो करना है। ओके, हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर इन सैंपल स्पेस, काउंट बोल सकते हो? 36, क्योंकि द आउट, इफ यू थ्रो 1 डाइस, ओके, उसमें क्या क्या एलिमेंट्स है, 1 2 3 4 5 6। ओके, आपको दोनों डाइस को एक टाइम पे थ्रो करना है। ओके, तो दिस 6 into 6, so total there are 36 outcomes or 36 elements in the sample space। मुझे उनमें से ऐसे एलिमेंट चाहिए। ओके, ये एलिमेंट आप कैसे लिख सकते हो, हाउ दिस 36 यू कैन राइट, लाइक से 1 1, नेक्स्ट इज 1 2, मतलब फर्स्ट डाइस पे 1 मिलेगा, सेकंड डाइस पे 1 मिलेगा, फर्स्ट डाइस पे 1 मिलेगा, सेकंड डाइस पे 2 मिलेगा, नेक्स्ट इज 1 3, नेक्स्ट इज 1 4, नेक्स्ट इज 1 5, नेक्स्ट इज 1 6। ओके, 2 1, ऐसे कंटिन्यू करो, लास्ट में आएगा 6 1 and 6 6। so these are the total 36 elements। okay, from these elements I have to just consider those elements whose sum is 10। फिर से बोल रहा हूं, इसमें से मुझे बस ऐसे एलिमेंट चाहिए जिनकी सम क्या आ रही है, 10 आ रही है। so what is that,
Just tell me elements whose, मुझे elements बोलो. Tell me elements whose sum is 10. One is 5. Okay, so total, so probability of getting 10 point, getting some 10 is what? 10 सम आने के कितने? 3 है ना. 10 सम आने के एलिमेंट्स कितने? 3. टोटल कितने? 36. so 3/36 is what? 1/12. ऐसे सिंपल क्वेश्चन है. तो इसमें ये 36 एलिमेंट लिखने में टाइम वेस्ट मत करो, डायरेक्टली ऐसे साइड में कैलकुलेट करो. हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर व्हिच गिव्स द सम टू बी 10. ओके, next, throw is made. Let me just erase few things. Just 1 minute. Let me write properly क्योंकि आपको मुझे शेयर करना है. Just 1 minute. Yeah. Next is आप थिंक करो और टेल मी दैट आंसर. ओके, यू कैन रीड दिस नेक्स्ट क्वेश्चन. इसको मैं बस अच्छे से लिख लेता हूँ. ठीक है, these are the 36 element and yeah, this is the probability. Now a throw is made with 2 dice. Same experiment is there. Probability of getting at least 10 points means what? At least 10 points मतलब क्या कैलकुलेट करना है? 10 भी कैलकुलेट करना है. Probability of getting some 10. Very good. 10, 11 and 12. Okay. Now 10 का आपको पता ही है, 10 की प्रोबेबिलिटी ऊपर ही थी, 1/12 ना. या इन सबको एक बार काउंट कर लेता हूं ना, दैट इज बेटर. जस्ट 1 मिनट, चेंज द अप्रोच. वो सारे एलिमेंट ही कंसिडर करने हैं ना. हाँ, तो ऐसे नहीं लिखना होगा. इट्स बेटर टू राइट लाइक दिस. आई वांट सम टू बी 10, 11 and 12. So tell me elements whose sum is 10, 11 and 12. ठीक है, तो यहाँ पे शायद मैंने ये नीचे नहीं लिखा है. ठीक है, हाँ, कितने एलिमेंट से काउंट कर लेते. चलो, तो 10 के पता ही है. 10 के क्या थे? 4, 6, 6, 4 and 5, 5. Now tell me elements whose sum is 11. 6, 5, दो ही है. 12, 6, 6. There is only one possibility. Now count this. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So total there are 6 and number of outcomes are 36. So your answer is 1/6. ठीक है? हाँ. Now this is a little bit tricky. Okay. Now side by side you can put your roll number in chat box. I will just take this last question and then we'll stop. Okay. Again this is important question. तो ये शायद सबको नहीं समझ में आएगा. So this we focus. Probability that a leap year selected at random contain 53 Sundays. Okay. अभी ये leap year का question है. Okay. How many days are there in leap year? 366. Okay. And we know that there are total 52 weeks. ठीक है. So in 52 weeks में ऑलरेडी कितने संडेज आने वाले हैं? 52 संडेज आने वाला है. दिस इज बाय डिफॉल्ट. ओके, बट 52 वीक्स मीन्स हाउ मेनी डेज? 52 वीक्स मीन्स हाउ मेनी डेज? 364. गुड. अप्रोच देखो बस कैसे करना है इसको सॉल्व. हाँ, ठीक है. तो मतलब क्या होता है लीप ईयर में? ऑलरेडी आपको पता है कि 52 संडेज आने ही वाले, दैट इज फॉर श्योर, वो आने ही वाले. ओके, बट आपको 53 संडे की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है. मतलब वो जो 1 जो रिमेनिंग है ना, अभी आप देखो 52 वीक्स आते ही है तो 364 डेज आपकी कंप्लीट हो चुके. नाउ द क्वेश्चन इज अबाउट दिस रिमेनिंग 2 डेज. 366 माइनस 364 मीन्स रिमेनिंग 2 डेज में क्या चेंज हो सकता है वो आपको देखना है. एंड दैट गिव्स यू दी दैट एक्स्ट्रा संडे. 52 संडेज तो आने ही वाले थे, दैट इज बाय डिफॉल्ट. ओके, सो एवरीथिंग इज डिपेंड ऑन दैट एक्स्ट्रा संडे कि कहाँ पे वो एक्स्ट्रा संडे आता है. 53 संडे आपको चाहिए. ठीक है, तो बेसिकली आई हैव टू फाइंड अ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग दैट संडे इन दिस 2 days.
प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग संडे इन दिस 2 days। फिर से रिपीट कर रहा हूं, बेसिकली आपको करना क्या है, यू हैव टू फाइंड अ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग संडे इन 2 days, क्योंकि इन 2 days में अगर कहीं पे संडे आ जाता है तो आपको 53 संडे मिल जाएंगे। अभी इन 2 days में क्या क्या पॉसिबिलिटी है वो पहले लिख लेते हैं, ठीक है। सो व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज फॉर दिस 2 days? दैट इज नथिंग बट योर सैंपल स्पेस। Again, I will repeat. What are the possibilities for these 2 days? That is my sample space. Can anyone tell me that possibility? Very good. Okay. पहला आ जाएगा मंडे ट्यूसडे, दो चाहिए ना आपको, हाँ। नेक्स्ट आ जाएगा ट्यूसडे वेनसडे, थर्सडे, फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे, करेक्ट नहीं आप कहीं पे अगर लिखने में प्रॉब्लम होती है तो, फ्राइडे सैटरडे, देन सैटरडे संडे, एंड देन व्हाट, मंडे। ओके, इज दिस क्लियर? सो फॉर दिस 2 days these are the only possibilities। इन 2 दिन में एक तो मंडे ट्यूसडे आ सकता है, ट्यूसडे वेडनेसडे आ सकता है, वेडनेसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे, सैटरडे संडे, संडे एंड मंडे। बट मुझे क्या चाहिए था, व्हाट आई वांट, आई जस्ट वांट प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग संडे फॉर दिस रिमेनिंग 2 days। आई जस्ट वांट प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग संडे फॉर दिस रिमेनिंग 2 days। तो कितने सैंपल स्पेस में एलिमेंट है? 1 2 3 4 5 6 7, टोटल देयर आर 7। और कहां पे संडे मिलता है आपको? हाउ मेनी आउटकम्स आर देयर वेयर यू गेट अ संडे? 2। यहां पे भी संडे मिल रहा है और यहां पे भी संडे मिल रहा है। सो व्हाट इज दैट प्रोबेबिलिटी? और यहां पे मिल रहा है मतलब वो ऑटोमेटिक 53 संडेज में कंसिडर हो जाएगा, क्योंकि 52 संडेज तो आने ही वाले थे, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट नहीं करने, दैट प्रोबेबिलिटी इज 100%। ओके, सो एवरीथिंग इज डिपेंड ऑन दैट रिमेनिंग 2 days वेयर यू हैव टू यूज द प्रोबेबिलिटी पार्ट, ठीक है। सो दैट probability is 2/7, so your answer is 2/7, ठीक है। ये फिक्स क्वेश्चन है, मतलब फेमस क्वेश्चन है, आपने भी बहुत बार ये सॉल्व किए होंगे, ठीक है। ओके, आई थिंक हियर विल स्टॉप, विल कंटिन्यू दिस पार्ट इन नेक्स्ट लेक्चर, एंड नेक्स्ट लेक्चर विल बी द लास्ट लेक्चर ऑन दिस प्रोबेबिलिटी।